Hello everyone. Today we have to learn one of the very important chapter of the accountancy or unit of the accountancy, that is the rectification of errors. The ultimate aim behind study of the subject bookkeeping and accordingly to maintain the record by the bookkeeping system is to know the true and fair results of our business. And if we have to know the true and fair result of our business, then what is important? The transaction and events both are to be correctly recorded in the books of accounts. Unless and until we are not recording the transaction and events properly or correctly in the books of accounts, we cannot find out the true and fair result of our business. And that's why it is necessary to learn the unit, that is the rectification of errors. It is very important for the commerce students and as well as for the businessman, accountants and everyone. Unless and until he do not know how to rectify the errors, he cannot finalize the books of accounts. So ultimate aim to know the true and fair result of the business, and for that purpose we are preparing the financial statements. And whenever we have to prepare the financial statements, we have to start from some bookkeeping record. At the very top we are maintaining the bookkeeping record. Bookkeeping record means what? To write the transaction in the books of accounts. Books of accounts में transactions को सिर्फ लिखना, फक्त लिहायचं. Paid for salary, paid into the bank, deposited into the bank, withdraw from the bank. It is called as the bookkeeping. उसको bookkeeping बोलते हैं. Transactions को सिर्फ record करना. Once the transaction is recorded in the books of accounts, the next step to make their proper classification according to their nature. According to their nature, the classification of accounts are to be made under the three head. As you know, personal account, real account and the nominal account. ऐसा तीनों में अपने को उसके क्लास बनाना होता है. हेड ऑफ अकाउंट्स नेचर के हिसाब से, if it is related to the person, then it is to be classified under the personal account. If it is related with expense, income, then it is to be classified under the nominal account. And if it is related to assets, properties, then it is to be classified under the real account. Then what to do? Classification is completed by us. The next step, we have to apply the rules for debit and credit. मग त्याला डेबिट आणि क्रेडिटचे रूल लावायचे. अब उसको डेबिट और क्रेडिट के रूल लगाना. पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, credit incomes or gains. And accordingly, now we have to divide it according to the fundamental principle of double entry bookkeeping, that every transaction has two effects or twofold effects or two aspects. हर एक ट्रांजेक्शन्स को दो एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपने मम्मी डैडी बोलते हैं यू आर परचेसिंग द मोबाइल, इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसेस, बट इट इज रॉन्ग. वेन एवर वी आर परचेसिंग द मोबाइल, कैश इज गोज आउट, but ultimately what comes to us? Mobile is come to us. Mobile is not just like a salary or wages. It is one of our asset. So asset is created with us. So we have to apply the rule of debit and credit. Then we have to decide the two accounts by using the fundamental principle of double entry bookkeeping. Then from that we have to prepare the journal to record the twofold effects in a books of accounts. It is called as the journal. डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल. जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एज द ट्रांजेक्शंस आर ऑकर्ड एंड क्लासिफाइड, इट इज टू बी फर्स्टली रिकॉर्डेड इन अ विच बुक? दिस इज द जर्नल. सो जर्नल इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसीलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, इसीलिए उसको ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोलते हैं. If we decide that each and every transaction to be recorded in a single journal, then what will happen? Journal will become very bulky. We cannot refer very easily. That's why it is divided into the two parts. Journal के दो parts कर दिए फिर अपन ने जाके. One is the cash book and another one is the subsidiary book. Cash book is used to record the cash transactions and the subsidiary book is to record the credit transactions. सब्सिडायरी बुक में अपन चार प्रकार पढ़ चुके हैं, यानी कि देख चुके हैं. परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक. सिमिलरली we have learned the 2-3 types of the cash book.
simple cash book, double column cash book, triple column cash book, and the petty cash book. These are all the original books of accounts. One thing you must remember, that we are studying here the rectification of errors. And when we have to learn the rectification of errors, the basic is very important. That is, proper classification must be known to you. How to make the proper classification, personal, real and nominal. ये आपको मालूम होना ही चाहिए, हे तुम्हाला माहित असायलाच पाहिजे, तभी आप आगे जा सकते हो. इसके लिए अपने जो पहले लेक्चर्स है वो आप देखो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में कैसे क्या अपने को क्लासीफाई करना चाहिए, वो मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है. आपको यूट्यूब के ऊपर भी वो देखने मिलेगा 100%. सो जर्नल को डिवीजन कर देना कैश बुक के अंदर और सब्सिडायरी बुक के अंदर. अब जर्नल में डिवीजन तो हो गया और ट्रांजैक्शन प्राइमरी स्टेज पर रिकॉर्ड हो गया है, इवेंट्स को अपन ने प्राइमरी स्टेज पर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स तो मालूम होना चाहिए. व्हाट इज अवर कैश बैलेंस पोजीशन, how much capital we have invested in our business, what amount we have withdraw from the business for our personal use. That's we have to know. What amount we have to receive from our debtors, what we have to pay to our creditors, what is the balance in our bank. If we have to know all these things or all these facts, then what to do? The journal is to be posted in the ledgers. journal को अपने को लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा. हर एक नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से अकाउंट्स बनाना, इट इज कॉल्ड एज द लेजर्स. लेजर्स अपन उसको बोलते हैं. अब लेजर्स के अंदर 3 स्टेजेस होती है. जर्नल इज द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर इज द सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, इट मस्ट बी पोस्टेड इन द लेजर. उसको लेजर में पोस्टिंग करना, सबसे पहले पोस्टिंग करना पड़ता है. यानी इफ पर्टिकुलर अकाउंट इज डेबिटेड, तो लेजर के अंदर पर्टिकुलर अकाउंट के डेबिट साइड में जाके जिसको क्रेडिट किया था उसका नाम अपने को लिखना पड़ता है. इट इज कॉल्ड एज द पोस्टिंग. उसको अपन पोस्टिंग बोलते हैं, त्याला आपण पोस्टिंग असं म्हणत असतो. फिर पोस्टिंग करने के बाद में वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ साइड, दैट इज द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, बिकॉज रेयरली द बोथ साइड्स आर इक्वल एंड दैट इज ओनली इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट. वो पर्सनल अकाउंट के बारे में ही होता है. when we have completed the payment or when we have received the complete payment, then personal account will be closed. Otherwise, real account and nominal accounts will be continue. No doubt, the nominal accounts are also to be closed by transferring to the profit and loss account, but it is not in the ledgers. In the ledger, we have to find out the balance. तो बैलेंस जो है वो जनरली 2 अकाउंट के तो रहते ही है, नॉमिनल और रियल के, और पर्सनल अकाउंट के नहीं रहते, ऐसा मैंने नहीं बोला हुआ है. पर्सनल अकाउंट बंद होता है, ऐसा मैंने बोला है. नॉमिनल और रियल अकाउंट जो है वो कभी बंद नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू रहते हैं. तो फिर अभी पोस्टिंग करना, पोस्टिंग के बाद अपने को उसका क्या करना पड़ता है, टोटलिंग करना पड़ता है. टोटलिंग करके उसका अपने को क्या निकालना पड़ता है, बैलेंसिंग निकालना पड़ता है. बैलेंसिंग निकालना पड़ता है. अब बैलेंसिंग अपन ने निकाल लिया. बैलेंसिंग निकालने के बाद ये सब बैलेंस जब अपन डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द ट्रायल बैलेंस. फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ आवर लेजर बैलेंसेस इन द डेबिट एंड द क्रेडिट फॉर्म. डेबिट और क्रेडिट फॉर्म के अंदर जो एक्सट्रैक्ट अपन बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ऑल डेबिट बैलेंसेस आर टू बी राइट इन द डेबिट कॉलम, all credit balances are to be right in the credit column, and finally at the last stage or at the end the total of the both side must be equal. दोनों भी साइड के टोटल ये इक्वल आना चाहिए. दोन्ही साइडची टोटल कशी यायला पाहिजे, इक्वल यायला पाहिजे. once the trial balance is tally, we can conclude that our books of accounts are correct from the arithmetical point of view. Our books of accounts are correct from the arithmetical point of view. In spite of the tally of the trial balance, the businessman or accountant or bookkeeper cannot say that his books of accounts are principally correct. Because while writing the books of accounts, either in the original books of accounts or in the secondary books of accounts, some mistakes are committed by the bookkeeper or by the accountant. When the mistakes are committed intentionally, then in our language they are called as the fraud. यानी जानबूझकर अगर वो कुछ मिस्टेक्स करता होगा, जाणून बुजून जर तो एखादी मिस्टेक करत असेल तो उसको फ्रॉड्स बोलते. इंटेन्शनली कमिटेड ऑफ द मिस्टेक इज कॉल्ड एज द फ्रॉड.
जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू द अमित अकाउंट, ही इंटेंशनली डेबिट टू द अमिता अकाउंट. No doubt, by spelling there is only difference of A, but both are different. Amit is different and Amita is different. When we have to debit to Amit, we must debit to Amit. You should not debit to Amita account. This mistake is intentionally created. Intentional था उसका कि अपने को इंटेंशन यानी जानबूझकर करना. समझ रहा है उसको कि अपन गलत कर रहे हैं, फिर भी वो गलत करता है, तब उसको फ्रॉड बोलते हैं. लेकिन सम ऑफ द मिस्टेक्स आर unintentionally committed by the bookkeepers, by the accountants, or by the businessman. These unintentionally committed mistakes in the accounting language are called as the errors. जब वो बिना किसी इंटेंशन से एक आधी मिस्टेक कर जाता है उसको एरर्स बोलते हैं. फिर एरर्स अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो ट्रायल बैलेंस टैली भी हो सकता है और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं भी हो सकता है. अब आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो फाइनल अकाउंट टैली होने वाले, लेकिन वो प्रिंसिपली थोड़ी बराबर बनेंगे. अगर अपने को अमित को अपन ने पैसे दे दिए हैं तो अमित का अकाउंट तो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से निकल जाना चाहिए, लेकिन गलती से अगर आपको अमिता को बता दिया तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखेगा. यानी देयर मे बी मिस्टेक इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं अपन एरर्स. अनइंटेंशनली कमिटेड मिस्टेक्स आर कॉल्ड एज द एरर्स, उसको एरर्स बोलते हैं. एरर जो होती है वो दो टाइप्स की होती है. एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द वन साइडेड एरर, एंड अनदर वन इज द टू साइडेड एरर. दुसरी जो एरर होती है उसको टू साइडेड एरर बोलते हैं. अशा या दोन प्रकारच्या एरर असतात. ऐसे ये दो प्रकार की एरर होते हैं. अभी ये जो वन साइडेड एरर होती है, ड्यू टू दिस the trial balance will never tally. Will never tally means the total of the both side is never equal. ट्रायल बैलेंस की टोटल कभी भी इक्वल आने वाली नहीं. In spite of the two sided error, the trial balance will tally or the total is टैली. इसकी टोटल कभी भी टैली होंगी इन स्पाइट ऑफ द टू साइडेड एरर. टू साइडेड एरर रहने के बाद में भी अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा. वन साइडेड एरर होने के बाद ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है. सम ऑफ द मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय द बुक कीपर्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड सम ऑफ द मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय द बुक कीपर्स और बाय द अकाउंटेंट्स एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और totaling of that ledger accounts or balancing of that ledger accounts. Both are different. When he entering the transaction in the books of accounts means we focus on the original books of accounts. इसका मतलब अपन ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो भी मिस्टेक कर रहे हैं. और जब अपन पोस्टिंग के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं, टोटलिंग के अंदर बुक्स मिस्टेक कर रहे हैं, बैलेंसिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, तो अपन सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं. यानी कि लेजर्स के अंदर अपनी मिस्टेक्स होते रहती है. तो इस प्रकार से मिस्टेक कहाँ होंगी ये अपन बता नहीं सकते हैं. एक बार अगर मिस्टेक हो गई तो उसको फाइंड आउट करना इट्स नॉट सो इजी. इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपने को पढ़ना जरूरी होता है. सम टाइम द मिस्टेक मे बी डिटेक्टेड इन द सेम ईयर और सम टाइम द मिस्टेक मे बी डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर. कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक उसी साल अपने को फाइंड आउट हो जाती है, यानी कि डिटेक्ट हो जाती है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिस्टेक अपने को उस साल में डिटेक्ट नहीं होती है, नेक्स्ट ईयर में डिटेक्ट होती है. तो दोनों को रेक्टिफाई कैसे करना वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ. तो वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर वो अपन देख रहे थे. तो इसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होता है. इसके अंदर ट्रायल बैलेंस टैली अगर नहीं हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपन क्लोज नहीं कर सकते हैं. टिल द टैली ऑफ द ट्रायल बैलेंस वी हैव टू वेट. जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है अपने को वेट करना पड़ता है. बट वी कुड नॉट वेट और वी कैन नॉट वेट आफ्टर द 31st मार्च, 3 months ओवर. 30 जून तक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बंद नहीं हो रहे तो वी कैन नॉट आंसर टू द डिफरेंट लीगल अथॉरिटीज और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. उनको अपन आंसर नहीं दे सकते. फिर इन स्पाइट ऑफ द सो मेनी एफर्ट्स द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली. देन व्हाट टू डू? जनरली वन साइडेड एरर के अंदर द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू वन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज द सस्पेन्स अकाउंट, जिसको अपन बोलते हैं सस्पेन्स अकाउंट्स. इसमें तो ट्रायल बैलेंस टॅली हो जाता है. याच्यामध्ये जनरली ट्रायल बैलेंस टॅली होऊन जात असतं. अभी ये मिस्टेक्स कहाँ होती है और ये मिस्टेक कहाँ होती है?
वन साइडेड एरर जनरली लेजर्स के अंदर होती है, सबसे पहले पोस्टिंग के समय होती है, बाद में इसमें होती है, दैट इज इन द टोटलिंग होती है, और उसके बाद में इसमें होती है, काय में होती है, बैलेंसिंग में होती है। दे आर जनरली वन साइडेड एरर, उसको वन साइडेड एरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक की टोटल गलत लग जाना, परचेज बुक की टोटल करते समय मिस्टेक्स हो जाना है। देखो हंस रहे कुछ लोग कि सर अभी तो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, मिस्टेक कैसे होंगी। फ्रेंड्स आई नो दैट अब नहीं होती मिस्टेक्स, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है। अमित के बजाय अमिता को डेबिट कर दिया तो कंप्यूटर थोड़ी बोलेगा क्यों रे भाई अमिता को क्यों डेबिट कर रहा है, कंप्यूटर तो एक्सेप्ट करके और उसका रिजल्ट दे देगा। तो ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होती है, यानी कि एरर्स होती है, इसीलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपने को पढ़ना है। एंड व्हेन द मिस्टेक्स आर कमिटेड in the four area, one is the error of principle, errors of principle, another one is the errors of omission, then next one is the error of commissions, and next one is the error of compensating error. ऐसी ये चार एरर होती है। अब ये जो एरर्स है और ये जो एरर्स है, वी हैव टू रेक्टिफाई देम। इनको अपने को रेक्टिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करना पड़ता है। उसके लिए जो एंट्रीज अपन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऑल दीज एंट्रीज आर कॉल्ड एज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। अब ये जो मिस्टेक्स होती है ये 3 स्टेज में कमिट होते रहती है। फर्स्ट इज द बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है और एरर्स हो गई है। अरे भाई जब ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना है और एरर्स हो गई है तो यू कैन करेक्शन कर लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। करेक्शन करते आएगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि अभी से ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है, कारण आतापर्यंत ट्रायल बैलेंस बनलेलं नहीं है। और ट्रायल बैलेंस जब नहीं बना है तो करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इफ सपोज आफ्टर ट्रायल बैलेंस but before finalization of books of accounts, before finalization of books, यानी before preparation of the final accounts, यानी ट्रायल बैलेंस बन गया है लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बने। फाइनल अकाउंट अभी अपन पढ़ने ही वाले बहुत जल्दी। फाइनल अकाउंट्स जो रहते हैं उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अपन बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन ये तीनों अकाउंट्स नहीं बने हुए हैं। देन वी हैव टू पास द रेक्टिफाई एंट्री। फिर इस समय पर अपने को रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ता है। कौन सी एंट्री करना पड़ता है? रेक्टिफाई एंट्री। ये कैसे करना वो मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड, or we can say closed, we can say final accounts are prepared, final accounts are ready। अब देखो इस पीरियड के फाइनल अकाउंट अगर अपने रेडी हो गए हैं, ये इस पीरियड के या कालावधीचे बुक्स ऑफ अकाउंट जर आपले रेडी झाले, अब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रेडी हो चुके हैं तो हाउ वी कैन करेक्ट द एरर्स। अब अपन एरर्स को कैसे क्या करेक्ट कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। 31 मार्च 21 क्लोज हो चुका है। इसके बाद अपने को एरर्स मिल रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो गए, नेट प्रॉफिट निकल गया, नेट लॉस निकल गया, एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए, कैपिटल अकाउंट, एवरीथिंग इज ओवर, और फिर मिस्टेक्स अराइज हो गई है। तो डेफिनेटली इट इज टू बी करेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। ये जो मिस्टेक है वो अपने को नेक्स्ट ईयर में करेक्ट करते आती है। आइदर इट इज अ सेकंड टाइप और इट इज द थर्ड टाइप। फॉर बोथ टाइप वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। ये दोनों के लिए अपने को जर्नल एंट्री करना ही पड़ता है। उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इसके अंदर अपने को एंट्री करने की जरूरत नहीं, वी कैन मेक द करेक्शन। अभी ऐसे फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक की टोटल ओवरकास्ट हो गई है तो अपन इमीडिएट परचेज बुक के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय मिस्टेक 2000 रुपीज आर
डेबिटेड, और इमीडिएट अपनी टोटल जो है वो डेबिट साइड की कम हो जाएगी। इस प्रकार से अगर मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस के पहले हैं तो करेक्शन कर सकते हैं, मिस्टेक अगर ट्रायल बैलेंस के बाद में है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होने के पहले है तो अपन रेक्टिफाई एंट्री करके कर सकते हैं, और मिस्टेक अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होने के बाद में है तो वो सेम पीरियड में नहीं हो सकती है, वो नेक्स्ट पीरियड में हो सकती है। फिर सेकंड और थर्ड टाइप में एंट्रीज कैसे करना वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आइदर इट इज ऑफ दिस एरर और दिस एरर। अभी एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर्वात पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी क्या होता है, एकदम ले लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जब अपनी मिस्टेक इसमें हो जाती है, काय में हो जाती है, क्लासिफिकेशन में मिस्टेक होती है, इट इज कॉल्ड एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिपेयर पेड ₹20,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अभी अपन टू साइडेड एरर देख रहे हैं। ये देखो, रिपेयर पेड ₹20,000 डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एक्चुअली व्हाट वी हैव पेड, रिपेयर पेड। एज वी हैव पेड द रिपेयर, ये नॉमिनल अकाउंट अपने को लेना चाहिए। बाय मिस्टेक अपन ने किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को, यानी किसको डेबिट कर दिया, रियल को डेबिट कर दिया। दिस इज रॉन्ग। अब इसको करेक्ट करना चाहिए। अभी करेक्ट कैसे करना है, व्हाट वी हैव पेड, रिपेयर, रिपेयर को डेबिट करना ही पड़ेगा। The repair account we have to debit it anyhow because we have paid the repairs, क्योंकि अपन ने पैसे रिपेयर के लिए पेड किया था तो रिपेयर को डेबिट करना ही पड़ेगा। तो एंट्री स्टार्ट कैसी होंगी, रेक्टिफिकेशन जल्दी करना है तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करना, और बाय मिस्टेक अपन ने किसको डेबिट कर दिया था, बिल्डिंग को। अकाउंटेंसी का मैथमेटिक्स आपको पता है, डेबिट को अगर आप फिर से डेबिट करते हो तो वो प्लस हो जाता है, क्रेडिट को अगर आप फिर से क्रेडिट करते हो वो भी प्लस हो जाता है, और डेबिट को अगर आप क्रेडिट करते हो तो वो माइनस हो जाता है, और क्रेडिट को अगर आप डेबिट करते हो तो माइनस हो जाता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव निगेटिव माइनस। अब यहाँ पर क्या डेबिट हो गया था, बाय मिस्टेक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डेबिट कैंसिल करना है तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी रेक्टिफाई एंट्री इमीडिएटली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। दिस इज यूर रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोलते हैं। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। अभी एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, ट्रांजेक्शन टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना ही अपन भूल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिपॉजिटेड द मनी इनटू द बैंक, समझो अपन ने पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए और अपने बिझनेस प्रिमाइसेस में आने के बाद उसका रेकॉर्डिंग करना अपन भूल गए, त्याचं रेकॉर्डिंग करणं आपण विसरून गेलो। इट इज कॉल्ड एज द एरर ऑफ ओमिशन, उसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, देन यू पास द एंट्री, आप उसकी एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी एरर ऑफ कमीशन होती है। एरर ऑफ कमीशन जो होती है, पार्ट इज रिकॉर्डेड, पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजेक्शन का कुछ भाग अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख डालते हैं, कुछ भाग अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना भूल जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज द एरर ऑफ कमीशन, उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 36,000 रुपीज वी हैव पेड, बट बाय मिस्टेक वी हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 3,600, लेकिन बाय मिस्टेक अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3,600 रुपए लिख डाला, उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। चौथा पार्ट होता है कॉम्पनसेटिंग एरर। अभी कॉम्पनसेटिंग एरर कैसी होती है, अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज टू भी अपन मार्केट में गए, एक अपना स्टूडेंट था, उसने बोला सर आपकी फीस बाकी थी ले लो, उसने फीस के पैसे दे दिए, जेब में अपन ने रख लिए 2,000 रुपीज। थोड़ा आगे गए, थोड़ा आगे जाने के बाद में एक फर्नीचर का शॉप आया, वो फर्नीचर का शॉप वाला बोले कितने साल हो गए सर आपने हमारे फर्नीचर के पैसे नहीं दिए। देव बोले फर्नीचर के पैसे, मैं कितने बाकी है, बोले 2,000 रुपए। इधर से निकाल के उसको 2,000 रुपए उधर दे दिए। अभी एक तरफ से ट्यूशन फी के 2,000 आए थे, दूसरी तरफ से वो दुकानदार को 2,000 रुपीज दे दिए और घर पे आ गए। पैसे तो कुछ आए ही नहीं, बिजनेस प्रीमाइसेस में कुछ पैसे आए ही नहीं ना, लेकिन ट्रांजेक्शन्स तो दो हुए थे ना। दोनों ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने को क्या करना चाहिए था, रिकॉर्ड करना चाहिए था। एक ट्रांजेक्शन में मनी कम्स इन तो दूसरे ट्रांजेक्शन में मनी गोज आउट। एक ट्रांजेक्शन में इनकम हो रहा था तो एक ट्रांजेक्शन में पार्टी रिसीवर हो रही थी। दोनों को लिखना अपन भूल जाते। इट इज कॉल्ड एज द कॉम्पनसेटिंग एरर, उसको कॉम्पनसेटिंग एरर बोलते हैं। अभी एकदम बेसिक लेवल के ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज जल्दी कैसे करना,
ये तो मैंने ऊपर बता दिया आपको, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना, तो यू शुड यूज द स्टेप्स। फिर आप उसके लिए स्टेप्स यूज करो, स्टेप्स टू करेक्ट द एरर्स, टू करेक्ट द एरर्स। उसमें की फर्स्ट स्टेप रीड, हाँ इसे ये थोड़ा सुनना तो पड़ेगा। रीड ट्रांजैक्शन carefully and find out the correct transaction, and find out the correct transaction। यानी ट्रांजेक्शन को केयरफुली पढ़ो और करेक्ट ट्रांजेक्शन को फाइंड आउट करो। देन सेकंड पार्ट इज राइट द करेक्ट एंट्री, राइट द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री लिखो, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ो, उसमें से मिस्टेक क्या हुई है और करेक्ट ट्रांजेक्शन क्या है वो फाइंड आउट करो, फिर करेक्ट एंट्री पास करो। थर्ड स्टेज के अंदर नोट डाउन द, यानी कि राइट डाउन द रॉन्ग एंट्री। ये मैं आपको स्टेप से बता रहा हूं, रॉन्ग एंट्री लिखो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। रिवर्स द अबव रॉन्ग एंट्री, ऊपर की जो रॉन्ग एंट्री है वो रिवर्स करो। अब वो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने के बाद रिकॉन्सिल द करेक्ट एंड रिवर्स एंट्री, यानी इनको दोनों को रिकॉन्सिल करो। इनको दोनों को रिकॉन्सिल करा तो यू कैन गेट द रेक्टिफाई एंट्री। फिर आपको कौन सी एंट्री मिलेगी? रेक्टिफाई एंट्री मिलती है। दीज आर द स्टेप्स। ये तो ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन है, यहां से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखो, ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ो और करेक्ट एंट्री लिखो। जैसे ऊपर का ट्रांजेक्शन था पेड फॉर रिपेयर, सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? पहली स्टेप, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? दिस इज द करेक्ट एंट्री। रिपेयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड and what goes out? Cash is goes out, so cash account should be credited। ये हो गई करेक्ट एंट्री। सेकंड स्टेप क्या थी? राइट द रॉन्ग एंट्री। जो रॉन्ग एंट्री हो गई वो लिखो। अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई थी? बाय मिस्टेक वी हैव डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, गलती से अपन ने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया था, तो दूसरी एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दिस इज अवर सेकंड एंट्री। ये अपन सेकंड एंट्री करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ इन द थर्ड एंट्री दिस रॉन्ग एंट्री इज टू बी रिवर्स। इसको रिवर्स करना, रिवर्स करना यानी जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट करेंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अपन ने ऊपर तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री देख ही ली थी, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ये एकदम सिंपल वे है, इससे भी करते हैं स्टूडेंट कुछ कुछ। मैं तो आपको प्रपोज करूंगा, यानी कि बोलूंगा कि हमेशा मैंने ऊपर सिखाया उसी हिसाब से करना। मैं बता रहा हूं आपको, 2-4 ट्रांजेक्शन समझ जाएगा। ये देखो स्टेप्स के हिसाब से, ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री, इसको रिवर्स कर दिया। अब अपन ने स्टेप के अंदर लिखा था कि रिवर्स एंट्री को और करेक्ट एंट्री को क्लबिंग करो, यानी क्या करना है यहाँ पर अपने को इनको रिकॉन्सिल करना है। अब इन दोनों को जब अपन रिकॉन्सिल करेंगे तो एक एंट्री बनेगी। देखो अभी ये एक एंट्री जो बनती है, दिस इज अवर रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती है। अब अपन करेक्शन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? सो नाउ वी हैव टू रिकंसिल दिस बोथ। ये दोनों को अपने को रिकंसिल करना है। देखो अपने को कुछ आता ही नहीं है, ऐसे समझ के अपन कर रहे हैं। अभी रिकंसिल करना, तो ये देखो रिपेयर अकाउंट डेबिट है, ये यहाँ पर रिपेयर अकाउंट अपन डेबिट में लिख डालेंगे। एकदम इजी वे से बता रहा हूँ। ये रिपेयर अपन ने डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्या है देखो, ये कैश डेबिट है, तो ये कैश भी अपन डेबिट कर देंगे। चलो अमाउंट ले लेते, 20,000 रुपीज। फिर समझने के लिए चाहिए ना कुछ, बाद में बोलूँगी कि समझ में नहीं आया। 20,000 20,000 20,000 20,000। अभी रिपेयर डेबिट 20,000,
कैश डेबिट 20,000, कुछ नहीं, रिकंसिल कर रहे दोनों एंट्री को। अभी यहाँ पे दोनों के क्रेडिट लिखेंगे, ये एक क्रेडिट है देखो, टू कैश क्रेडिट 20,000, और ये एक क्रेडिट है देखो, टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे 20,000। अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, समझो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फिर भी आप बताओ, ये देखो ये कैश यहाँ पर डेबिट साइड में है, वो भी 20,000 रुपीज़ का है, और ये कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड में वो भी 20,000 रुपीज़ का है। जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट के हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गए ना। अब जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो व्हाट इज रिमेन, रिपेयर अकाउंट इज रिमेन एंड बिल्डिंग अकाउंट इज रिमेन। सो आवर रेक्टिफाई एंट्री इज रिपेयर अकाउंट डेबिट, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, ये अपनी फाइनल एंट्री बन गई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। ये अपनी आंसर क्या एंट्री बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज। ये बन गई अपनी रेक्टिफाई एंट्री। यहां तक सभी लोग पढ़ते हैं, बट either whatever may be the rectify entry passed by us, whatever may be the rectify entry passed by us, either that rectify entry is correct or not, that is also very important. For that purpose, the next step is that you should compare that wrong entry with your rectify entry. इस समय पर आपको आपकी ये जो रॉन्ग एंट्री हुई है ये, और आपकी ये जो रेक्टिफाई एंट्री हुई है ये दोनों को आपको कंबाइन करना है। ये दोनों को कंबाइन करने के बाद जब आपको करेक्ट एंट्री मिलती होंगी, यानी कि ये वाली एंट्री मिलती होंगी, देन सपोज टू बी यूर रेक्टिफाई एंट्री इज करेक्ट। फिर आपकी रेक्टिफाई एंट्री बराबर है, ये करना है। अभी अपन ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, ये मैंने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, दोनों के डेबिट लिख रहा हूं पहले मैं। ये देखो ये क्या है, रिपेयर, ये रिपेयर लिख दिया मैंने, रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये रिपेयर अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। बाद में ये क्या है देखो, कैश, ये मैंने लिख दिया टू कैश, ये लिख दिया मैंने 20,000 रुपीज। वी आर वेरीफाइंग, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मराठी में जिसको बोलते हैं पड़ताड़ा करने, बहुत सिस्टमेटिकली समझता है। और ये देखो टू बिल्डिंग अकाउंट, ये लिख दिया मैंने टू बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा यहां लिखता हूं, चलो टू बिल्डिंग अकाउंट, ये लिख दिए 20,000 रुपीज। अभी बहुत सिंपल थिंग है, ये बिल्डिंग डेबिट है, ये बिल्डिंग क्रेडिट है सेम अमाउंट का, तो ये बिल्डिंग खत्म, यानी कि निकल जाएगा। व्हाट इज रिमेन, रिपेयर और कैश। दिस इज द करेक्ट एंट्री। आफ्टर पासिंग द रेक्टिफाई एंट्री, द रॉन्ग एंट्री मस्ट बी कैंसल्ड and the correct entry must be in our books of accounts. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट एंट्री आना चाहिए, तो ही समझना कि अपनी रेक्टिफाई एंट्री करेक्ट हो गई है। ये एक लिए और लेंगे अपन, हाँ 5 तो लेंगे ही ना। फिर वन साइडेड एरर में सेकंड सेशन में बताऊंगा, एक ही सेशन में सब कुछ नहीं पढ़ना है। अभी और एक रेक्टिफिकेशन एंट्री का पार्ट अपन ले रहे हैं। सपोज टू बी विड्रॉन from bank for personal use, charge to advertisement account, कुछ भी होते रहता है, charge to advertisement account rupees 2,500. So read the transaction carefully and find out the correct entry. बहुत ध्यान से पढ़ लो ट्रांजेक्शन। विड्रॉन फॉर व्हाट पर्पस, पर्सनल पर्पस। एंड व्हेन यू आर विड्रॉइंग द मनी फॉर द पर्सनल पर्पस इन द अकाउंटेंसी, वी आर डेबिटिंग टू द ड्रॉइंग अकाउंट। जब अपन पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं तो अपन ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई एंट्री 2,500 रुपए की, है ना। देन राइट द रॉन्ग एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, बाय मिस्टेक दिस अमाउंट इज चार्ज टू द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। गलती से ये अमाउंट अपन ने एडवर्टाइजमेंट को चार्ज कर दिया, देन यू शुड डेबिट टू द एडवर्टाइजमेंट अकाउंट।
आपको एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये कर रहे हैं अपन रॉन्ग एंट्री। व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 2500 रुपीज़। ये कर दिया अपन ने रॉन्ग एंट्री। अब इसको अपन रिवर्स करेंगे। अब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2500 रुपये टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2500 रुपये। ये एंट्री को रिवर्स किया अपन ने, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 2500 रुपये। ये हो गई अपनी रिवर्स एंट्री। नाउ व्हाट टू डू? ये जो रिवर्स एंट्री की है उसको और ये पहले एंट्री को अपने को मिलाना है। ये दोनों एंट्री को अपन ने कंबाइन करना। अब ये दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे अपन। देखो मैंने पीछे भी सिखाया था आपको। ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पहले लिख लेता हूँ दोनों को एक जगह। टू ये कैश अकाउंट डेबिट ओनली फॉर यू। हाँ, ये लिख लिया। बाद में इसका टू कैश क्रेडिट लिखेंगे। ये टू कैश अकाउंट क्रेडिट लिख दिया 2500 रुपये। और इसका टू एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में 2500 रुपीज़, है ना। अभी देखो, ये देखो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। व्हाट इज रिमेन नाउ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। दिस इज अवर रेक्टिफाई एंट्री। ये अपनी रेक्टिफाई एंट्री हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। नाउ आइदर दिस रेक्टिफाई एंट्री इज करेक्ट और नॉट। अब ये अपने को वेरीफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लेक्चर में, मेरे सेशन में यही इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर अपने को देखना है ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसको और इसको अपने को मिलाना है। किसको और किसको? ये वाली एंट्री को और ये वाली एंट्री को। ये देखो, ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट डेबिट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपन। ये एडवर्टाइजमेंट डेबिट मैंने लिख दिया। ये एडवर्टाइजमेंट डेबिट, ये मैंने 2500 रुपये लिख दिए। यहाँ पर टू कैश है, यहाँ पर ड्राइंग है, तो पहले यहाँ पर ड्राइंग लिख लेते डेबिट में। ठीक है, यहाँ लिख लेते ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2500। अब क्रेडिट क्या है? देखो, टू कैश, टू कैश क्रेडिट में है 2500 रुपीज़। और ये क्या है? टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये भी 2500 रुपीज़ है। वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर देखो, ये एडवर्टाइजमेंट डेबिट है और ये एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट सिमिलर अमाउंट है, ये कैंसल। दिस इज अवर करेक्ट एंट्री। ये अपनी करेक्ट एंट्री मिल गई। देखो अपने को फर्स्ट वाली, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन दिस वे वी हैव टू पास द रेक्टिफाई एंट्री। इस प्रकार से अपने को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की रेक्टिफाई एंट्री करना पड़ता है। ये तो बहुत सिंपल है। डिफिकल्ट वाले भी रहे तो भी आपको करते आएगा। नेक्स्ट सेशन में अपन वो भी देखने वाले। पुढच्या सेशन मध्ये आपण ते पण बघणार आहोत। एक और ले लेते अपन जाते जाते। रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज, हाँ आपका दोस्त 420 क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्चुअली व्हाट वी हैव रिसीव्ड द कमीशन। क्या मिला अपने को? कमीशन मिला है। जब कमीशन मिला है तो अपने पास व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। सो यू शुड डेबिट टू द कैश अकाउंट बाय ₹420 एंड क्रेडिट टू द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। यानी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ये बन गई 420 रुपये की एंट्री। यानी कि ये करेक्ट एंट्री पास कर दी। बाय मिस्टेक व्हाट हैपन? अपन ने ऐसा कर डाला कि इंटरेस्ट मिल गया है, तो कमीशन के बजाय अपन ने इंटरेस्ट को लिख दिया, तो ये रॉन्ग एंट्री लिखेंगे अपन। कैश अकाउंट डेबिट 420 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ये ऐसा करते नहीं बैठना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी एक बार प्रैक्टिस में आ गए कि ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट क्रेडिट। अब इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट
420 to cash account credit, to cash account credit 420. ये हो गई अपनी रिवर्स एंट्री. अब अपना आंसर रेक्टिफाई एंट्री देखना है. अब रेक्टिफाई एंट्री देखना है तो अपन इसको और इसको मिलाएंगे, दोनों को, इसको और इसको मिलाएंगे. अब जब ये दोनों को अपन मिलाएंगे तो ये देखो कैश अकाउंट डेबिट है. पहले लिख लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिट. ये कैश डेबिट 420 लिख लिया. बाद में इसका डेबिट लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट. ये आंसर है अपना. डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर देंगे 420 रुपये से. यहाँ क्या है देखो, टू कमीशन रिसीव्ड, ये लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड. कुछ नहीं, दोनों एंट्री को कंबाइन लिख रहा हूं मैं. टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे 420 और वापस लिखेंगे टू कैश अकाउंट. इसका पार्ट, चारों पार्ट मैंने लिख दिए हैं. जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल करता हूँ आपके सामने. ये लिख दिए 420 रुपये. क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? वेरी सिंपल. ये कैश डेबिट है 420, ये कैश क्रेडिट है 420, ये दोनों कैंसिल हो गए. व्हाट इज अवर रेक्टिफाई एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट. दिस इज अवर रेक्टिफाई एंट्री. आइदर दिस रेक्टिफाई एंट्री इज करेक्ट और नॉट, उसका वेरिफिकेशन करना है. अब उसका वेरिफिकेशन करना है तो ये और ये एंट्री को कंबाइन करना. अब ये दो एंट्री को अपन कंबाइन करेंगे. ये देखो, ये पहली एंट्री कौन सी है? कैश. इसका पहला पार्ट अपन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. ये लिख दिया मैंने कैश डेबिट 420. इसका डेबिट पार्ट लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट. ये लिख दिया 420. इसका क्रेडिट पार्ट लिखेंगे. ये हो गया. अभी इसका डेबिट हो गया, अभी ये क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. ये 420 लिख दिया. ये देखो टू कमीशन रिसीव्ड, यहां पर लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड. ये 420 हो गए. देखो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये डेबिट है इंटरेस्ट रिसीव्ड और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट है. ये दोनों कट तो एंट्री क्या मिली? कैश टू कमीशन रिसीव्ड. ये अपनी करेक्ट वाली एंट्री मिल गई. आफ्टर पासिंग द रेक्टिफाई एंट्री द रॉन्ग एंट्री मस्ट बी नल. तुम्हारी भाषा में निकल जानी चाहिए, वो रहनी ही नहीं चाहिए. जैसा मैंने आपको बताया, देखो करेक्ट एंट्री पास हो गई है ना. इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपने को करना पड़ता है. नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. बाय ऑल ऑफ यू, सी यू.